Hello everyone, welcome to the brand new episode of Gibbs. And today we have Soumya with us from I Mumbai, and let's hear about her journey and talk about how she prepared for his interview and how she prepared for CAT and what are the challenges that she faced and how she dealt with those challenges. So I will welcome you Soumya in this episode of Gibbs. Thank you. And please tell us about yourself and your educational background, and also mention about your profile as well, your 10th, 12th, graduation and your CAT score. Okay. So my name is Soumya Srivastava. I'm from Satna, Madhya Pradesh, and I'm the first year student at the Indian Institute of Management, Mumbai. Prior to joining IIM Mumbai, I was working as a business development manager at a startup for 11 months, and I've done my civil engineering from Jabalpur Engineering College, which I graduated in 2022. So my profile is 888. And I had scored 98.2 percentile in CAT 2022 and got call from most of the IIMs, like eliminating Blackies and MDI, all the IITs except IIT Delhi, and converted most of them. Yeah. So you have talked about, many of you who don't know what is 888. So it means 10th, in class 10th, you also score above 80, class 12 above 80, and graduation also above 80. So we're going to keep this interview moving. So after that, we are going to talk about her motivation, because if you see that she have already worked in startup. So what happens there? You get to know about the startup culture, and you've also worked in sales and marketing team. So tell us about why you left the startup journey and started preparing for CAT. And since जब भी आप प्रिपेयर करते हो CAT वगैरह के बारे में, तो क्या होता है कि एक मोटिवेशन लेवल आपको रखनी पड़ती है, क्योंकि हर एक एग्जामिनेशन में इसकी जरूरत पड़ती है. तो आप उस मोटिवेशन लेवल को कैसे रख पाओगे? Yeah. So during my second year of undergrad, I was selected as a volunteer for Head Start Network Foundation, which is the non-profit organization for startup ecosystem. So वहाँ पे when I was working as a volunteer, वहाँ पे I was surrounded by many founders, CEOs, जिनका बहुत startups थे on small scales. So they used to come, they used to discuss about investment, networking, all those fancy terms, which I was very fascinated जब मैं उनके साथ वहाँ पे वो meetings attend करती थी. And उस time पे this drive कि मुझे MBA करना है started. And second year में only I decided that I'll go for CAT. After that COVID hit, and third year में I gave CAT examination where I scored like very low. Then further after that I decided that मैं final year के बाद फिर से CAT दूंगी. And on that particular duration I did not want कि gap आए. So इसलिए मुझे ये था कि मैं ज्वाइन कर लेती हूँ कोई ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टार्टअप, क्योंकि मैं उसी ऑलरेडी कल्चर में थी, इसलिए आई चोज टू वर्क इन अ स्टार्टअप ताकि थोड़ी वर्क फ्लेक्सिबिलिटी भी रहे एंड आई कुड प्रिपेयर फॉर माई CAT. एंड ऑब्वियसली स्टार्टअप teaches you in and out everything. Yeah. So that is why I chose CAT. And after that, how did you keep the motivation well, which you asked? So I'm not a very studious person. First of all, I do study for 3 to 4 hours in a day straight, and मैं उसमें ही try करती हूँ कि मैं उसको बहुत अच्छे से कर पाऊँ. And मेरा motivation, like my way of dealing with it is on and off study. I do study for 15 to 20 days straight, and then 10 days का मेरा break हो जाता है. I go for vacation. I only chill on those 10 days. So Okay. I did the same during my preparation journey. Even though in the morning I need to work for the startup, and after that during the evening time I joined library also. So during the evening I used to go to library to study. Mostly I gave walks and all, so it was manageable at that point of time. So this on and off journey and staying with my family because work from home tha, meeting friends on a daily basis. I did not cut off from friends and everybody during my CAT preparation. I was very normal. Even many of my friends did not know कि मैं prepare कर रही हूँ. So I was very normal और बहुत chill होकर मैंने prepare किया. So you want to say that 3-4 घंटे per day, and with the gap of 5 to 10 days if you. Yeah, on and off. It's a very individual perspective. अगर आप वो 3 to 4 hours दे रहे हो डे के, तो फिर उसको होल हार्टली दो. उसके बाद तो आप फिर पूरे दिन कुछ भी करो, आराम करो, और या तो एनी हॉबीज विच यू लाइक यू कैन परस्यू दैट. तो एक आपका ये होता है कि आप स्टेबिलिटी रहती है आपके माइंड की कि ठीक है, मैं मज़े भी कर रही हूँ और हॉबीज़ परस्यू कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, एंड देन उसके बाद 3-4 hours आप अच्छे से लग के पढ़ लो. दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर CAT. एक्चुअली बिकॉज उस टाइम पे क्या होता है ना कि आपको पता होता है कि 3-4 घंटे ही हैं हमारे पास, तो पढ़ लेते हैं. नहीं तो अगर आप छोड़ दो तो उसके पास ऐसा होता है कि कुछ ज़्यादा ही हमारे पास टाइम बच जाता है, तो उस टाइम पे हमें पता नहीं चलता कि करना क्या है एक्चुअली. तो वो टाइम एक्चुअली यूटिलाइज नहीं होता. तो हमें ये बताओ आप कि आपने ये जो प्रिपरेशन था, आपने बोला कि आपने स्टार्ट किया था थर्ड ईयर में.
तो उसके बाद से वहाँ पे अपनी स्कोर नहीं किया, तो फिर फाइनल ईयर के बाद आप स्टार्ट करें प्रिपरेशन। तो हमें उस प्रिपरेशन के बारे में बताइए कि कितना टाइम वहाँ पे लगा आपको प्रिपेयर करने में। सो ड्यूरिंग द थर्ड ईयर मैंने आई स्टार्टेड लाइक फाउंडेशनल नॉलेज। मैंने थर्ड ईयर में क्वांट के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे थे। आई ट्राइड कि मैं थोड़ा सिलेबस जो है कैट का कवर कर पाऊँ, एंड फॉर 5 to 6 मंथ्स स्ट्रेट मैंने वो चीज़ पढ़ाई करी थी विथ माई अंडरग्रेड का जो पूरा कोर्स चल रहा था। एंड उसके बाद फिर जब मैंने कैट दिया, फिर वो पूरा गैप है टिल माई फाइनल ईयर। फिर मैंने बिकॉज दैट डिसअपॉइंटेड मी कि मैंने इतना प्रिपेयर किया बट आई कुडंट स्कोर वेल, सो मैंने छोड़ दिया सब कुछ। बट वो तो एक था ही मेरे अंदर कीड़ा कि मुझे करना ही है, मुझे MBA ही करना है। सो उसके बाद जब फाइनल ईयर मेरा हुआ, आई गॉट one more thing, I interned at Arvind Birla Group during my undergrad and I got a PPO for it, but I did not go with it क्योंकि उनकी ज्वाइनिंग अक्टूबर में आई थी और मुझे फिर से कैट देना था नवंबर में। सो जैसे ही मैं पास आउट हुई, आई गेस ड्यूरिंग जुलाई, एंड देन आफ्टर दैट अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर मैंने फुल प्रिपेयर किया, पूरे मॉक्स दिए। ये पूरा ड्यूरेशन मेरा सिर्फ मॉक पे डिपेंडेंट था कि मुझे बिकॉज आई न्यू कि मैंने कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए हैं, बट आई लैग्ड पेपर देने के उस पूरे माइंडसेट पे। सो आई फोकस्ड ऑन दैट। मैंने बहुत मॉक्स दिए ऑन अ डेली बेसिस, ऑल्टरनेट डेली आई गेव सेक्शनल्स, ताकि मेरा वो फियर ऑफ एग्जामिनेशन जाए। सो मेरा सेकेंड पार्ट ऑफ जर्नी वॉज फुली बेस्ड ऑन मॉक्स एंड एनालिसिस, नथिंग एल्स। Okay, then the next challenge, the next question that we are going to ask you is that what are the challenges? These are the challenges that you have talked about, that how you prepare for it. So what are the challenges that you faced as a civil engineer? Because what I have heard from many of the participants, that as an engineer they have good knowledge of, they are very much comfortable in quants, ILR, and many of them lagged in VIRC. So what was your challenge in that phase while preparing? Other than that, or you can also include this one. ओके, सो अगर मैं अपने नॉलेज के बेस पे बोलूँ कि मेरा क्या कंफर्ट जोन था, सो क्वांट वाज नॉट माय कंफर्ट जोन इवन इफ बीइंग एन इंजीनियर, बिकॉज व्हाट आई फेल्ट कि मुझसे सारे कॉन्सेप्ट बन रहे हैं। आई न्यू ईच एंड एवरी फॉर्मूला, आई न्यू ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट, बट वाइल इम्प्लीमेंटिंग इट, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम वो कॉन्सेप्ट वहाँ यूज़ ही नहीं हो रहा था। मेरे आंसर्स गलत होते थे, मैं अटेम्प्ट ज़्यादा नहीं कर पाती थी, बहुत मुझे प्रॉब्लम होती थी क्वांट अटेम्प्ट करने में। एंड ड्यूरिंग दैट LRDI फेज ऑल्सो, उस टाइम पे मेरी एक टाइम पे जाके स्टैंडर्ड हो जाता था, ठीक है नहीं ही सॉल्व हो रहा है अब। सो आई डोंट नो, आई हैव ऑल्सो हर्ड कि इंजीनियर्स का बहुत सॉर्टेड होता है क्वांट एंड LRDI, विच वॉज नॉट माई केस। BA में VRC में आई वॉज सॉर्टेड बिकॉज ऑन अ डेली बेसिस आई वॉज रीडिंग आर्टिकल्स, आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर RC, लाइक आई यूज्ड टू डू 4 RCs इन अ डे ऑन अ डेली बेसिस, सो दैट मेरा अटेम्प्ट बढ़े, मेरा उससे फियर जाए। सो VRC से मैंने अपना डर हटा दिया था, बट क्वांट एंड LRDI का मेरा डर नहीं हटा था। सो फिर मैंने क्या किया, मैंने जब मेरी सेकेंड फेज ऑफ प्रिपरेशन चालू हुई, आई यूज्ड टू गिव सेक्शनल्स डेली ऑफ क्वांट एंड LRDI, बिना ये सोचे कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, बिकॉज वो कभी कंप्लीट ऐसे प्रॉपर होगा नहीं। एवरी टाइम आप फ्रॉम द स्क्रैच चालू करोगे और उसके बाद आपको लगेगा ठीक है ये नहीं बनता, ये नहीं बनता, ये नहीं बनता। सो मैंने बैकवर्ड जर्नी अपनाई कि पहले सेक्शनल दो, जो नहीं बन रहा उसको वापस जाके पढ़ो। पढ़ने के बाद सेक्शनल देने का जो वेट करते हैं ना, वो वेट कभी खत्म नहीं होने वाला। सो एक ये मैंने फेस किया। और अगर मैं साइकोलॉजिकल बोलूँ तो ऑब्वियसली मेरे सारे फ्रेंड्स आर गेटिंग सेटल्ड, उनके जॉब हो रहे हैं, सब कमा रहे हैं, सब बढ़िया ज़िंदगी जी रहे हैं, एंड आई एम हियर प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम। वो बहुत आपको साइकोलॉजिकली वीक करता है, बिकॉज आप डेली देख रहे हो कि इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छा यहाँ घूमने जा रहा है, ये जॉब कर रहा है, ये कर रहा है, और आप पढ़ रहे हो, प्लस आपने वो एग्जामिनेशन ऑलरेडी पूरी प्रिपरेशन के साथ दे दिया है और आपको रिजल्ट नहीं मिला है। सो टू वर्क ऑन दैट जर्नी अगेन फ्रॉम द स्क्रैच कि अब क्या होगा, अगर मतलब द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आई हैड इन माई माइंड वॉज मैं फिर से सेम ही प्रिपेयर करूँगी तो भी कैसे होगा जब पिछली बार नहीं हुआ। बट या आई डिड नॉट वॉन्ट टू लाइक स्टेप डाउन इस जर्नी से। सो मैंने बोला कि नहीं ठीक है, लेट्स डू इट, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, एक बार बिना डरे फिर से देखते हैं क्या पता हो जाए। सो जब मैं कैट का पेपर भी अटेम्प्ट कर रही थी ना, आई डोंट रिमेंबर वो पूरे 2 आवर्स, क्योंकि मैं नहीं डर रही थी सेकेंड टाइम। फर्स्ट अटेम्प्ट मुझे पूरा याद है, एक मिनट याद है कि मुझसे एक क्वेश्चन नहीं बन रहा था, मैं ये कर रही थी, ये कर रही थी। दूसरा अटेम्प्ट मुझे याद ही नहीं, क्योंकि मैंने इतने मॉक्स दे करके ना वो फियर ही हटा दिया था। प्लस एक और चीज़, हम घर पे मॉक देते हैं, विच इज़ इन योर कम्फर्ट जोन। ये मैंने फर्स्ट टाइम ये गलती करी थी। सेकेंड टाइम आई स्टार्टेड गोइंग टू लाइब्रेरी में अलग अलग जगह बैठ के पेपर देना, ताकि आपको नहीं पता आपके अगल बगल कौन बैठ रहा है, आपको नहीं पता किस पोजीशन में बैठे हो, क्या कंफर्ट जोन है, चेयर कैसी है। अगर वो एक्सटर्नल फैक्टर्स भी इतने मैटर कर रहे हैं तो मैं उसका भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। तो आई जॉइन लाइब्रेरी, जहाँ मैं डेली जाके पेपर देती थी। मैंने घर पे मॉक नहीं दिए हैं सेकेंड अटेम्प्ट में। बहुत अच्छी बात है वैसे, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर जाओ
वैसे रूम पे आके अपना आराम से बैठ के पैर ऊपर भी करके आप अपने रेस्ट दिए जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर बाय द वे आप किसी एग्जाम हॉल में गए और पता चला कि वहाँ पे चेयर जो है कंफर्टेबल नहीं है, तो वो आपको बॉदर करने लगे। तो अगर आप लाइब्रेरी में जाकर देते हो तो ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है एक्चुअली। एंड दोबारा प्रिपेयर करना मतलब obvious सी बात है कि सेम चीज़ दोबारा से लेके जाना है, वही सेम कॉन्सेप्ट पढ़ना जो पहले भी पढ़ रखे थे, और दिमाग में हमेशा रहता है कि ये इस बार कैसे अलग होगा पिछली बार से। तो लेकिन हाँ, बट उसके बाद भी अगर आप ट्राई कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको रिजल्ट दिखेगा, एज यू हैव सीन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोना बी, इज इट बेटर टू लीव द जॉब और प्रिपेयर विद द जॉब? Okay, so it's an individual perspective first of all, but I would say कि अगर आप जॉब के साथ मैनेज कर पा रहे हो, दैट इज़ द प्लस पॉइंट, बिकॉज आप वो वर्क एक्स यहाँ पे आके शो करोगे जो आपकी समर इंटर्नशिप प्रोग्राम में काम आएगा, जो आपके वर्क एक्स में काम आएगा। इट विल गिव यू अ टॉपिक टू टॉक इंटरव्यू में। अगर आपका गैप है देन यू नीड टू एक्सप्लेन कि क्या गैप है, क्यों गैप है। सो इट्स डेफिनेटली अ प्लस पॉइंट। बट अगर आपकी जॉब के साथ नहीं हो पा रहा है बिल्कुल, एंड यू आर वेरी डिटरमाइंड कि नहीं मुझे कैट ही देना है, मुझे MBA के लिए ही जाना है, एंड आपको ऐसा लग रहा है कि आप छोड़ के उसको बेटर कर पा रहे हो, सो यू कैन गो फॉर इट। हमारे पास क्या, हमारे बैच में कितने फ्रेशर्स हैं, उनके भी गैप हैं, बट उनने आकर के इंटरव्यू में बहुत अच्छे से डिफेंड कर लिया उस चीज़ को। इट्स ऑल अबाउट डिफेंडिंग। आप इंटरव्यू में डिफेंड कर पा रहे हो, आपका गैप वेल एंड गुड, आप जॉब के साथ कर पा रहे हो, वेल एंड गुड। इट्स ऑल अबाउट कि जितने आवर्स आप डेली के दे रहे हो उसको ऑनेस्टली दो, विथ जॉब और विदाउट जॉब, इट डज नॉट मैटर। CAT does not ask for like 8 to 9 hours of study on a daily basis. ये तो डेफिनेटली है, आप स्लोली और स्टडली उसको करते जाओगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, वो कंपाउंडिंग दिखेगा। हाँ, वो कंपाउंडिंग, इट्स अ कंपाउंडिंग डेफिनेटली। क्योंकि लास्ट टाइम जो सीजन 1 में मैंने देवा प्रशांत पे इंटरव्यू लिया था, देवा प्रशांत इज ऑल्सो फ्रेशर, यू कैन फाइंड दिस वीडियो ऑन दिस चैनल एज वेल। सो वो फ्रेशर विद 2 years अपडेट, एंड ही इज नाउ हियर, ही इज डूइंग गुड एक्चुअली, ही गॉट अ गुड प्लेसमेंट, ही आल्सो गॉट अ गुड SIP। सो इट्स ऑल अबाउट यू नो हाउ यू वांट टू ट्राई इट। अगर आप कर सकते हो जॉब के साथ, वेल एंड गुड, देयर आर मेनी पीपल, मेनी एग्जांपल यू कैन सी दैट, यू नो, एंड इफ यू कैन डू दैट, देयर इज आल्सो many other examples as Deva Prasad himself as well. And now you know, once an aspirant decided that he is going to take CAT exam, so उसके बाद से पहला सवाल उसके सामने आता है कि मटेरियल कहाँ से मिले उसको। क्योंकि when you go on YouTube and you search, or when you go on internet and search CAT material, you will get n number of coachings and number of materials. So what material did you prefer, and would you suggest something for this as well? Okay. So first of all the materials are moreover same. It's not about कि कोई आपको कम क्वेश्चंस मिल रहे हैं, क्वेश्चन बैंक्स मिल रहे हैं, कहीं ज़्यादा मिल रहे हैं। आप यूट्यूब पे भी सर्च करोगे, एवरीवेयर ऑल द कॉन्सेप्ट्स आर सेम, हर जगह अवेलेबल है। हाँ, मॉक आपको डिफ़र करेगा कोचिंग्स का। सो मैंने जब कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में काम किया था तो आई प्रेफर टाइम्स का स्टडी मटेरियल, विच वॉज रियली वेरी हेल्पफुल। उनका काफ़ी क्वेश्चंस होते थे इन ईच एंड एवरी टॉपिक, सो वो मैंने प्रिपेयर किया था। एंड जब मैंने सेकेंड फेज में सिर्फ मॉक्स दिए, सो आई गेव कैट का मॉक एंड टाइम्स का मॉक। दोनों पोल्स अपार्ट थे, वन विच गेव मी वेरी कंफर्टिंग फीलिंग बिकॉज वो कैट के लेवल का था, टाइम्स विच इज़ नोन फॉर उसके डिफिकल्ट मॉक्स थे, जिसने मुझे ये भी फील कराया कि पेपर बहुत डिफिकल्ट होगा तो क्या करना है। सो द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ डाइवर्सिफाई करो थोड़ा मॉक्स वगैरह को, ताकि आपको अलग अलग डैशबोर्ड्स, अगर आपको पता चलेगा कि जैसे कैटिंग का डैशबोर्ड वॉज वेरी सिमिलर टू कैट का जैसा दिखता है, एंड टाइम का डैशबोर्ड टॉगल करने में बहुत ईजी था कि आप ईजिली स्विच कर पा रहे हो, तो आपको हर एक एक्सपीरियंस मिल पाएगा। और आपको एनालिसिस भी दोनों का आप सेपरेटली कर सकते हो, जैसे मैंने किया था। तो आप मॉक्स को डाइवर्सिफाई कर सकते हो। स्टडी मटेरियल ऐसा एज सच आई वुड नॉट से कि ये बेटर है, क्योंकि मैंने किसी और का देखा नहीं, आई स्ट्रेट अवे गो विद टाइम्स। बट ये चीज़ मैं बोलूँगी कि इट्स मोर ओवर सेम, इट ओनली डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस, जितना आप कर रहे हो। इवन इफ आप गूगल करके 100 क्वेश्चन निकालो और अरिथमेटिक के वो करने लग जाओ, वो भी सिमिलर होंगे, और हर जगह सब सेम मटेरियल है। सो यू नीड नॉट टू बॉदर कि मैं मटेरियल क्या चूज़ करूँ, कैसे जाऊँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप स्टडी मटेरियल कोई भी चूज़ करो, बट सपोज करो, मैं बस ये चेक कर रही हूँ कि मुझे हुआ था कि नहीं। चलिए तो जरूर बोलना है। आई थिंक उसका नॉर्मल आया होगा ना, पक्का ना, हाँ है। साइलेंट तो नहीं किया।
चालू करो भी दोबारा वेरी गुड ये आंसर नहीं आंसर नहीं ये पूछ लो जो क्या वो फ्लो बना रहा है so what material did you refer to and you suggest something for the aspirant as well यस सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से कि सारे मटेरियल मोर ओवर सिमिलर ही हैं किसी में कोई पर्टिकुलर ऐसा डिफरेंस नहीं है कि आपको यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे यहाँ कम मिलेंगे हर जगह आपको सेम कॉन्सेप्ट सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन है सो आई प्रेफर्ड टाइम्स का स्टडी मटेरियल जिसमें आई गेस मोर देन इनफ क्वेश्चंस थे ईच एंड एवरी टॉपिक के जो कि मैं रेफर कर सकती थी एंड जब मैंने इस मॉक का अपना जर्नी चालू किया सो मैंने कैटकिंग और टाइम्स के मॉक को प्रेफर किया था ताकि मेरे को दोनों डाइवर्सिफाई डैशबोर्ड्स मिल पाए डाइवर्सिफाई एक्सपीरियंस मिल पाए दोनों बहुत ही ऑपोजिट थे आई वुड से कैटिंग वाज लाइक वेरी कंफर्टिंग उसके कैट लेवल के क्वेश्चंस थे टाइम से मुझे ये रियलाइज़ करा गया पेपर टफ होगा तो आपको कैसे अटेम्प्ट करना है बिकॉज उसके मॉक्स टफ थे थोड़े सो उन्होंने मुझे दोनों टेस्ट दे दिए कि ईजी आएगा तो कैसे करना है टफ आएगा तो कैसे करना है सो इसलिए मैंने अपने मॉक्स को डाइवर्सिफाई रखा था और अगर आपको प्रिपेयर करना है तो फॉर स्टडी मटेरियल यू डोंट नीड टू बॉदर मच आप कोई भी स्टडी मटेरियल प्रेफर करो आप इवन गूगल करके सर्च कर लो 100 क्वेश्चन ऑफ अरिथमेटिक इट विल बी सेम जो टाइम्स में है जो कैटकिंग में है जो करियर लॉन्चर में हर जगह बिल्कुल सिमिलर है बस आप कॉन्सेप्ट बिल्ड करो उसके बाद आप मॉक में जा रहे हो तो देन आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा डाइवर्सिफाई करो आप 2 से 3 कोचिंग के मॉक्स भी ले सकते हो ताकि आपको थोड़ा फील हो कि हर एक अलग डैशबोर्ड में कैसे आपको क्वेश्चंस करने हैं आपका मोनोटोनस ना रह जाए आपको अलग अलग टेस्ट आ जाए मॉक्स का वो आप कर सकते हो अदरवाइज अगर आप एक कोचिंग का भी कर रहे हो मॉक्स तो इसमें कोई बुराई नहीं है इट्स ऑल अबाउट अटेम्प्टिंग इट एंड एनालाइजिंग इट टू दी लाइक अच्छे से करना चाहिए and see prepare to मतलब जहाँ तक whenever somebody has got their let's suppose that you cleared that you got a good percentile so what matters after that is your interview because it is somewhat deciding factor that whether you are going into good IIMs or you are getting into no IIM at all yeah. so tell me about your journey how you prepare for your CAT interview and share some of your experience while taking the interview from other IIMs as well. Okay, so as I mentioned, other than Blackheath, I got the call from every other IIM and IITs maybe except IIT Delhi. I got SJMSOM and every other IIT call plus MBI. So one thing which I figured out कि मुझे सबसे पहले खुद को जानना है. One and the foremost question जो चालू होता है tell me about yourself introduction and then they are judging you. They are not judging like your knowledge. उनको आपके बारे में जानना है how what is your perspective, how do you think कि कैसे आपकी जर्नी अभी तक रही है, आपने उससे क्या लर्न किया. सो मैंने क्या किया था मैंने सेम मेरा टाइम का कैटिंग में ही इंटरव्यू का भी उनके साथ ही पैकेज में था सो मैंने उनको मॉक इंटरव्यूज़ काफ़ी दिए थे एंड प्रिपरेशन के लिए व्हाट आई डिड वाज like one of my friend was preparing for UPSC so I used to take help of her कि तुम मुझे जीके पढ़ा दो तो मुझे ये कॉन्सेप्ट पढ़ा दो कि क्या चल रहा है वर्ल्ड वाइड जनरल नॉलेज ये सब चीज़ें मैंने उससे बहुत पढ़ी है करेंट अफेयर्स उससे बहुत पढ़ा है डेली कॉल करके हम पढ़ रहे होते तो वो मुझे पढ़ा रही होती थी कि वो ये पॉलिसी होती है फिजिकल पॉलिसी ये है ये है ये सो डेली मैं उसके साथ थी प्लस वन मोर थिंग एक और चीज़ मुझे बहुत हेल्प करी थी कि वो डेली न्यूज़पेपर पढ़ती थी वन एंड द फॉरमोस्ट थिंग मैंने डेली न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है क्योंकि मेरे से नहीं पढ़ा जाता था मेरे को बिल्कुल नहीं होता था कि मैं डेली उठूँ और न्यूज़ पढ़ूँ तो मैंने उसकी हेल्प की थी कि यार जब तू पढ़ती है ना तो मुझे आज की जो हॉट न्यूज़ है वो बता दिया कर या मुझे नोट डाउन करके भेज दिया कर एंड देन दैट स्पेसिफिक न्यूज़ मैं यूट्यूब में जाके पढ़ लिया करती थी सो ये मैंने अपना सोल्यूशन निकाला बिकॉज आई वॉज वीक कि मैं नहीं पढ़ सकती हूँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पहले समझो कि आप किस में वीक हो और उस पर ही काम करो सबकी जर्नी सिमिलर होती ही नहीं है कि अगर मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा न्यूज़पेपर तो मैं तो भी डेली लेकर बैठूंगी तो उसका कुछ होगा नहीं तो मैंने उसका अपना लूपहोल देखा कि ठीक है मैं अपने फ्रेंड की हेल्प ले सकती हूँ प्लस मैंने जैसे मेरे पापा हैं ही इज़ इन बैंक तो मैंने उनसे GDP क्या है ये क्या है सब कुछ उनसे पढ़ा बिल्कुल कॉन्सेप्ट्स उनसे पढ़े तो मैंने ट्राई किया कि मैं हर जॉनर को हर टॉपिक जो कि उस टाइम पे एट दैट मोमेंट चल रहे हैं और बहुत हॉट टॉपिक्स हैं उनको कवर करता हूँ नॉट बहुत कोर में जाके बट मेरे पास पेरिफेरल नॉलेज होना चाहिए कि क्या किस में क्या चल रहा है अगर एज इन जैसे वॉर हो रही हैं रशिया यूक्रेन वॉर ये सब तो कैसे क्या चल रहा है तो मुझे पेरिफेरल नॉलेज होना चाहिए ताकि मैं खुद से पूछूँ तो मुझे पता होना चाहिए आई शुड नॉट बी ब्लैंक सो आई टुक हेल्प ऑफ माई फ्रेंड्स एंड फैमिली मोर देन एनी कोचिंग
ये तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग थी मेरे लिए। और फिर मैंने लाइक आई मेंटेन्ड अ डायरी जिसमें मैंने अभी तक क्या क्या किया मैंने उसको एक पेज पे लिखा था। इवन इफ मेरी हॉबीज़ है कि मैंने डांस किया है या मैंने लाइक आई अटेंडेड एनी वर्कशॉप, आई वाज वॉलंटियर, आई वाज द हेड ऑफ द डांस क्लब, सब मैंने एक एक पेज पे लिखा। एंड देन उसके अराउंड आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैंने क्या किया उसके अराउंड क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और एट प्रेजेंट उस पर्टिकुलर फील्ड में क्या चल रहा है वो मैंने एक एक पेज में नोट डाउन किया। एंड मैंने वो डायरी मेंटेन रखी। एंड हर इंटरव्यू के पहले मैं एक बार उसको रीड करती थी कि हाँ ये चीज़ें हैं कि ताकि मुझे पता रहे कि जैसे मैंने बास्केटबॉल भी खेला है तो बास्केटबॉल का मेरा फेवरेट प्लेयर क्या है, वो अभी इस मोमेंट पे उसने कोई अवार्ड जीता है क्या क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें मैं मेंटेन करके रखती थी। एंड देन दैट इज़ हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर एन इंटरव्यू। एंड एक्सपीरियंसेस के बारे में बट से मेरा टेक्निकल साइड इंटरव्यू ज़्यादा कभी गया नहीं। जो एक और चीज़ होती है कि फॉर इंजीनियर तो आपको इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट पूछे जाएंगे, इट्स नथिंग लाइक दैट। इट्स लाइक आप कैसे ड्राइव करते हो इंटरव्यू को। हाँ, इट डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप उसको बहुत टेक्निकल बना रहे हो तो वो आपसे टेक्निकल पूछेंगे, अगर आप नहीं बना रहे हो तो वो नहीं पूछेंगे। आप जैसा अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो उस बेसिस पे उनको कुछ इंटरेस्टिंग लगा, दिल पिक इट अप एंड देन उस पर क्रॉस क्वेश्चन होगा। सो नीटी का इंटरव्यू भी जब मैं थी तो नीटी था, तो आई मुंबई का इंटरव्यू भी मेरा बिल्कुल बहुत ज़्यादा टेक्निकल फोकस नहीं था। इट वॉज मोर ओवर बेस्ड ऑन माई परस्पेक्टिव। लाइक आई वॉज आस्क्ड कि अगर ये सिचुएशन है, मार्केटिंग की ये सिचुएशन है, जैसे ग्रीन मार्केटिंग हो रही है, ये सारी चीज़ें हो रही है, तो व्हाट डू यू थिंक कि कितना सही है कितना गलत है, व्हाट डू यू थिंक कि नेगेटिव मार्केटिंग का क्या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है। सो दे वांटेड टू अंडरस्टैंड माय पर्सपेक्टिव मोर देन कि मेरी नॉलेज क्या है, मुझे क्या कॉन्सेप्ट आते हैं। सो ये तो मेरा काफ़ी अच्छा, मैं सेटिस्फाइड थी इंटरव्यू से। IIT बॉम्बे का इंटरव्यू मेरा अभी काफ़ी अच्छा हुआ, तो वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे पूरा था। एंड अदर देन दिस मेरा IIM कैप का इंटरव्यू था एक, जो कि मेरा बहुत अच्छा नहीं गया था बिकॉज वो थोड़ा टेक्निकल चला गया था एंड आई वाजंट कॉन्फिडेंट मेरे टेक्निकल नॉलेज में, बिकॉज ऑब्वियसली कोविड बैच, आधा नॉलेज तो वैसे भी आया नहीं था, और जितना था वो भी हम भूल चुके थे 1-2 साल के 3 साल के गैप में। या बट इवेंचुअली मे बी कॉन्फिडेंस जो दिखा या मे बी द वे आई पुट इट आउट कि ठीक है मुझसे नहीं बनता तो आई डू नॉट नो अबाउट इट, और मैंने थोड़ा उसके अराउंड बता दिया कि ठीक है आई डू नॉट नो दिस कॉन्सेप्ट बट आई नो इट कैन बी दिस। इवन अगर आपको नहीं पता है तो यू कैन से कि आई कैन मेक अ गेस कि ये ऐसा हो सकता है। इवन सो वो सुनते हैं, दे आर कम हियर फॉर अ कॉन्वर्सेशन। सो आप उसको बहुत कॉन्वर्सेशन वे में चला सकते हो इंटरव्यू को। सो वो मैंने चलाया एंड आई गेस आई कन्वर्टेड मोस्ट ऑफ देम। मैं SJMSOM में वेट लिस्टेड थी एंड yeah, other than this, I converted my colleges. Actually, I mean, you have talked about the interview. Most of the things that I can list out is that from your experience, whatever, see, take the help from your coaching, Yeah. and most importantly, take the help from your friends. And if you get around any news and all, so have an educated opinion about Yeah. it. And these 3 things, if you can do that, and obviously you have to maintain your calm, you have to be calm, and you have to be confident. I think with that 4-5 points, I think you will be able to Yeah. clear the CAT interview as well. And let's talk about you are now here in IIM Mumbai. Congratulations to you. Thank you. And now let's describe your experience of past 8 months here in IIM campus, because right now we are in the IIM library. So tell us about your past 8 months of experience, because divide it in 3 months and then 5 months, because 3 months is very much crucial, everybody knows that. So tell us about how rigorous the process was, and what were the challenges that you faced, and how did you like that process? Okay, so it was a roller coaster ride because बहुत कुछ हुआ है in 8 months and we are one of the lucky batch जिसने ये shift देखा है from NITI to IIM Mumbai. सो जब हम आए थे, सो इन IIM मुंबई आप ये स्टार्टिंग के 3 मंथ्स SIP में जाते हैं, पूरे यू प्रिपेयर फॉर इट, एंड देन सितंबर में आपका SIP प्रोसेस होता है। सो दैट वाज लाइक वेरी स्ट्रेसफुल वो पूरा टाइम था कि आप प्रिपेयर कर रहे हो, आप अपने हिसाब से जी ही नहीं रहे हो, आप सिर्फ चल रहे हो कि ठीक है अभी मुझे रेज्यूमे बनाना है, अभी मुझे CV बनाना है, अभी मुझे इंटरव्यू भी प्रिपेयर करना है, अभी मुझे ये करना है, यू आर नॉट फीलिंग एनीथिंग, आप बस चल रहे हो, रोबोट की तरह काम कर रहे हो। स्लीपलेस नाइट, खाना नहीं खाया, बहुत कुछ होता है उस टाइम पे, बट इट टीचेस यू अ लॉट, बिकॉज मुझे नहीं पता था कि मैं इतना स्लीपलेस नाइट्स के साथ भी इतने इफेक्टिवली अपने आप को पोर्ट्रे कर सकती हूँ इंटरव्यूज़ में। इसके पहले मेरा ये था कि यार अगर मैं 3-4 दिन से मैंने रेस्ट नहीं लिया, मैं अच्छे से नहीं हूँ, तो मैं इंटरव्यू में नहीं अच्छे से शोकेस कर पाऊँगी।
बट वो एक जो एंथुसियाज्म होता है, एक जो होता है ना कि नहीं मुझे एक चीज़ निकालनी है, मुझे उस एसआईपी प्रोसेस में अच्छा करना है, वो आपको उस टाइम पे कुछ याद नहीं दिलाता। सो बी इट योर सीवी जो प्रिपरेशन का टाइम होता है, बी इट योर इंटरव्यू प्रिपरेशन टाइम, बी इट योर जीडी वगैरह, यहाँ पे हमने सारे मॉक जीडीज़ दिए हैं, मॉक इंटरव्यूज़ दिए हैं, सब बहुत बहुत अच्छा था, बहुत हेल्पफुल था। एंड उस सारी चीज़ों ने हमें इतना प्रिपेयर किया कि फॉर दोज 2 to 3 जो एसआईपी की डेज थे, जो पूरा टाइम पीरियड था, वो हमें पता ही नहीं चला कैसे निकल गया। वो हम बस घुसे हैं और हम बस बाहर निकले तभी फील हुआ है कि ठीक है, हाँ नाउ वी आर प्लेस्ड। सो दैट वाज वेरी रिग्रेस येट वेरी बहुत आपको हाँ वर्थ एक्सपीरियंसिंग दैट टोटली। और उसके बाद जब अभी उसके बाद की जो लाइफ है टोटली अपोजिट, एंजॉइंग, बिल्कुल बढ़िया, बहुत थोड़ा चिल करिकुलम है, आप क्लासेस कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, वीकडेज ऑल क्लासेस एंड ऑल, एंड देन वीकेंड्स तो हम वी आर एट द कोर ऑफ मुंबई, पवई में है हम, तो हम बाहर जाते हैं, हम घूमते फिरते हैं, मज़े करके आते हैं। एंड अगर मैं इसके अलावा बताऊँ कि MBA लाइक चेंजेस यू, आप जैसे आते हो इट चेंजेस यू एज अ पर्सन, आपका सब कुछ चेंज हो जाता है। मैं शायद 8 मंथ्स पहले जो मेरा माइंडसेट था, जो मेरा पर्सपेक्टिव था, सब कुछ चेंज हो गया। एंड यू वोंट फील इट, बिकॉज ये आपको फील नहीं होगा कि आप ये चीज़ कर रहे हो, ये होती जाएगी अपने आप। आपका बस एक लाइक 10 मिनट PPT प्रिपेयर करके प्रेजेंट कर देना, तुरंत उठ के क्लास चले जाना, तुरंत सरप्राइज क्विज़ दे देना, सरप्राइज टेस्ट दे देना, एंड आपका जो थिंकिंग होराइजन एक्सपैंड होता है यहाँ करके। MBA लाइक टीचर्स यू कि आप कैसे अपना थॉट प्रोसेस बढ़ा सकते हो, आपका अपना ओपिनियन कैसे बिल्ड करना है आपको, आप कैसे if you can give any advice or suggestion to the students, so that if this was this video till this end, so now they will have something like the stepwise process, how to prepare for it and how to prepare themselves for the interview and what they can expect. As a whole, just give them your advice that these are the things that you need to do, and that's how you want to go into IIM Mumbai. Okay. So first of all, which I would like to say, just know your approach. मेक अ टेलर मेड अप्रोच कि हाँ ठीक है, मुझे ऐसे प्रिपेयर करना है। किसी की भी जर्नी सिमिलर नहीं होगी। जैसे मैंने अपनी जर्नी बताई कि मुझे क्वांट में इशूज़ थे, ये था वो था, तो ये किसी की भी आपकी सेम नहीं होगी। अगर आप क्वांट में अच्छे हो तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप क्वांट के लिए डेली सेक्शन हो जैसे मैं दे रही थी। सो अगर मैं बहुत बेस से बोलूँ तो आपने जैसे ही चालू करा, स्पेंड 1 मंथ लर्निंग एंड नोइंग कि तुम्हारे क्या लूप होल्स हैं, आप कहाँ वीक हो। आप सिलेबस का पेरिफेरल नॉलेज ले लो यार, ठीक है ये सिलेबस है, ये कॉन्सेप्ट्स है, इसमें से आपको क्या नहीं बनता, इसमें से आप किस में कॉन्फिडेंट हो, किस में आपकी ज़ीरो नॉलेज है, जॉट डाउन दोज पॉइंट्स। एंड देन उसके बाद आप अपना स्केड्यूल बनाओ अकॉर्डिंगली कि ठीक है अब मैं पहले ये पढ़ूंगा, फिर ये एंड स्टार्ट विथ की ज़ीरो नॉलेज है इसमें तो इससे स्टार्ट करूँगा, एंड देन धीरे धीरे उस पर बेड ऑन करते जाओ। देयर आर ऑल्सो मैनी कैंडिडेट जो कि मॉक देते हैं एंड देन उसके बेसिस पे पढ़ाई करते हैं। वो टॉप बॉटम अप्रोच लगाते हैं कि पहले मैं मॉक दूंगा, फिर जो उस पर नहीं बन रहा वो पढ़ूंगा, वो उनके लिए वर्क करता है। सो अंडरस्टैंड कि आपके लिए क्या अप्रोच वर्क करेगा, और उसके बेसिस पे आप काम करना चालू करो। फिर जब आपको हो जाए कि ठीक है मैंने थोड़ा फाउंडेशनल नॉलेज मेरे को आ गया है, देन स्टार्ट गिविंग मॉक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज अगर मैं खुद बोल रही हूँ, अगर मैंने मॉक्स पे इतना फोकस करा होता तो I could have cleared it on my first attempt only, but there I lagged. So mocks are very important. Do not wait कि खत्म होगा सिलेबस देन मॉक्स देंगे, इट डजंट वर्क लाइक दैट। आप कभी भी मॉक देना चालू कर सकते हो। यू कैन स्टार्ट इवन कि ठीक है मॉक देकर भी लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, या आप स्टार्ट कर लो 1 आध महीना पढ़ो एंड देन स्टार्ट गिविंग मॉक सेक्शनल्स, एंड देन उसको एनालाइज करना। एनालाइजिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनालाइज करो एंड देन देखो कि ठीक है दीज आर द कॉन्सेप्ट्स जिसमें मुझे बिल्कुल नहीं आता, आई हैव नल नॉलेज इसमें मुझे थोड़ा आता है बट आई एम नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट इट, एंड देन वर्क ऑन दोज टॉपिक्स। और फिर अगर आपको खुद को समझ आएगा कि ठीक है मेरा इंग्लिश इज़ नॉट माई स्ट्रॉन्ग पॉइंट, सो स्टार्ट रीडिंग डेली कि ठीक है मैं डेली रीड कर रहा हूँ और उसके अकॉर्डिंग RCs करना डेली। पॉइंट अच्छा नहीं है तो फिर पहले आपने कॉन्सेप्ट बनाओ, देन सेक्शनल्स दो पॉइंट पे। सो इंग्लिश एंड देन LRDI एंड देन क्वांट, ये तीनों चीज़ें सबसे ज़्यादा आपको काम करना पड़ेगा इन तीनों चीज़ों में, वहाँ पे जाके अटेम्प्ट करने में कि हाउ टू अप्रोच। आपका खुद का होना चाहिए कि ठीक है मैं VRC में पहले RC कर रहा हूँ फिर वर्बल कर रहा हूँ। आप वहाँ पे जाकर ऑन स्पॉट अपना अप्रोच नहीं बना पाओगे। इट माइट हैव वर्क बहुत कम लोगों के लिए, बट ये सबके साथ नहीं हो पाता है, वहाँ पे आपको जाके नर्वसनेस होने लग जाती है फिर।
सो ये पूरी जर्नी आपको जो कैट की प्रिपरेशन की जर्नी है, ये आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग से ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस करना है कि आपका थिंकिंग होराइजन कैसे बढ़ रहा है, आपका कैसे नए क्वेश्चंस के साथ डील करना कैसे बढ़ रहा है, आपके कैसे अटेम्प्ट कैसे करना है, कैसे सेट्स चूज़ करना है कि LRDI में कौन सा सेट पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, VRC में क्या पहले करना है, वर्बल में क्या छोड़ना है, ये वो। सो आप अपना ना माइंड इवॉल्व करो। आप अब रोज़ प्रिपेयर कर रहे हो, डेली सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन, तो ट्राई कि आपका माइंड इवॉल्व हो कि ठीक है नए क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम उसके साथ ऐसे डील कर पा रहे हैं। उस 2 घंटे में हम उसके साथ बहुत अच्छे से डील कर पा रहे हैं, बिना घबराए, बिना नर्वसनेस लाए बीच में। और जैसे अगर मैं एक एक पार्ट भी लेके चलूँ तो VRC है, जो कि सबसे ज़्यादा उसमें इंपॉर्टेंट होता है कि आप सही RC चूज़ करो अटेंड करने के लिए। वो आपका प्रिपरेशन ही आपको फील करा पाएगा कि ठीक है, अगर इकोनॉमिक्स रिलेटेड RC है तो वो मुझसे नहीं बनता है, तो वहाँ पे जाके डोंट चूज इट। तो आपको कैसे पता चलेगा? आप जब डेली कर रहे हो तब पता चलेगा कि मुझे ये टॉपिक के RC से आई एम कंफर्टेबल एंड इनमें मेरा जीरो नॉलेज है। सो VRC का ये हो गया। LRDI का भी सिमिलर, आप टॉपिक से बहुत कंफर्टेबल हो जाते हो और उस टॉपिक को वहाँ जाके पहले अटेम्प्ट करते हो। एंड क्वांट तो फिर आपका टाइम का गेम है कि कितनी जल्दी सेलेक्ट कर लिया, प्लस आप एलिमिनेट कैसे कर रहे हो कि क्वेश्चंस नहीं करना है। इट्स नॉट अबाउट चूजिंग, इट्स अबाउट एलिमिनेटिंग कि क्वेश्चंस नहीं करना है। डोंट वेस्ट योर टाइम जब नहीं बन रहा है या जब आपको पता है कि इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस होने वाले हैं और आप उस पर ही लगे हुए हो 3-4 मिनट। सो इट डजंट वर्क लाइक दैट। सो टेक दिस प्रिपरेशन जर्नी नॉट एज अ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग जर्नी कि मुझे सारा सिलेबस आना चाहिए, रैदर एज अ कि मुझे एक एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करना है जिसमें नए क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें मुझे जाके सेलेक्ट करना है, चूज़ करना है, कुछ क्वेश्चंस को एलिमिनेट करना है और बिना घबराए अटेम्प्ट करना है तीनों सेक्शंस को इंडिविजुअली। टेक ऑल द 3 सेक्शंस इंडिविजुअली, एक का भाग लेके आगे नहीं जाना है कि जैसे मेरा LRDI वॉज नॉट दैट गुड, मैंने LRDI में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, मेरे सबसे कम सेक्शनल परसेंटाइल भी LRDI में ही है, बट मैंने वो बैक ऑफ द माइंड लेकर के क्वांट में नहीं गई थी। नेक्स्ट सेक्शन वॉज क्वांट। सो आई लाइक कि नहीं, क्वांट को फ्रेश माइंड से चालू करना है एंड देन तुरंत नया सेक्शन आ जाता है। डजंट गिव यू टाइम कि आप 2 मिनट शांति से बैठो। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ये सारी चीज़ आप मॉक में एक्सपीरियंस कर लो। अगर आपको एक सेक्शन अच्छा नहीं गया तो नेक्स्ट सेक्शन में टेक अ 1 मिनट ब्रेक, अपना शांति से रहो, शांत करो खुद को, देन स्टार्ट विद द सेक्शन। तो ये सारी चीज़ आप मॉक में एक्सपीरियंस कर लोगे ना तो आपको वहाँ पे जाके बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो या डोंट टेक मॉक लाइटली, वो तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। Actually, I mean, as you are, already said that introspection, know that where you are lacking. So सबसे अच्छा तरीका है कि आप पहले ही जब शुरुआत करने जा रहे हो एक मॉक ले लो, पता चल जाएगा कि मुझे ये आता है, ये आता है, ये नहीं आता, and then started working on that part. That was a very good advice actually. And I think with that we have come to the last part of this episode. So thank you so much for joining us. And if you guys have any questions, feel free to drop those questions in comments. And do like this video and share with all your friends, and subscribe to this channel. And that's all for now. See you guys. Bye. Jai Hind.